Welcome back, guys. The elections are an intense time for us. राजनेता भाषण देते हैं, वादे करते हैं और आखिर ये तय होता है कि हमारे देश पर कौन राज करेगा और हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। लेकिन ऐसी सरकार आने के लिए चुनाव करना पड़ता है। This is carried out by so-called election commission officers who are responsible for proper voting in the polling stations. Our next movie is about a day in the life of such an election commission officer. न्यूटन कुमार, a government clerk, is sent on election duty in the conflict-ridden jungles, जो नक्सलियों के कब्जे में है। वहाँ उसे पता चलता है कि how corrupt and unfair the elections are. Despite that, Newton tries his best to conduct a fair voting process in the region. Newton was loved by the critics for showing how Indian democracy is functioning, but there are definitely more learnings to find. So let's start the learning journey. Voting is an opportunity for change. लेकिन वोट देने का क्या फायदा अगर हम ये नहीं जानते कि वोट कैसे देना है या चुनाव में कौन सा नेता खड़ा हुआ है। You can see from some scenes कि उन गांव वालों को ये नहीं पता कि वोट कैसे देना है और how to cast a vote. It is for this reason that Newton tries to explain that. ऐसी ही मशीन अंदर है, वहाँ उस कमरे में। ये मशीन आपका वोट लेगी। समझाने के बावजूद उन गांव वालों को लगा कि वोट डालने के बाद उन्हें पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कौन सा नेता चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। मलकों ने सब नेताओं के नाम तो लिए, but these people had the names for the first time. यानी उस गांव वाले का सवाल बिल्कुल जायज था कि वोटिंग किसको दें। Though Newton realizes that there is no point in explaining the meaning of voting after some time, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक 21st century की डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी तक लोग मौजूद हैं जिन्होंने कभी चुनाव के बारे में सुना ही नहीं। और ज्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि इस फैक्ट के लिए किसको ब्लेम किया जा सकता है, गांव वालों को या पार्टी और सरकार को। अगर देखा जाए तो इंडियन पार्टी स्पेंड द इक्विवेलेंट ऑफ अराउंड $7 billion on their election campaign, even more than the presidential and congressional elections in the United States in 2016. 7 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार थे, मगर गांव वालों को एक इलेक्शन प्रोग्राम या एक सिंपल सा पोस्टर भेजने के लिए वो तैयार नहीं थे। They were ready to send Newton and the whole team there to collect the votes. They hired the military to protect Newton's team, but no politician was ready to go or send one of his party members to explain to people what the elections were about. But this knowledge is crucial. इंसान को पता होना चाहिए कि वोट कैसे देते हैं, और अगर नहीं पता तो it's the government's duty to do so in a way that preserves democratic values. ये बात पार्टियों पर भी लागू होती है जिनका काम बनता है to convey their values and views to people in a transparent manner. Because it's the people who vote and they don't want to make a mistake due to lack of knowledge. I mean, गांव वाले ये गलती कर बैठ सकते थे क्योंकि उन्हें कहां से पता कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी या बुरी है। India is a democracy, but फिल्म हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है that the gap between the ideals of democracy and the way it is practiced in India is huge. According to Article 51A of the Indian Constitution, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है to abide by the constitution and respect its ideals and institutions to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. पूरी फिल्म के दौरान व्यूअर को एहसास होता है कि इन ड्यूटीज को इग्नोर किया जाता है। The assistant commandant आत्मा सिंह शुरू से तैयार थे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने में। हमारे आदमी जाकर वोट लाएंगे अंदर से। कुछ देर बाद नजर आता है कि एक आत्मा सिंह का ही बंदा लोगों से झूठ बोलता है कि वोटिंग पहले से ही बंद हो जाएगी। If Newton hadn't recognized this, तो ये लोग शायद वोट करने आते ही नहीं। मगर कोई बात नहीं, अगर वोटिंग करने कोई नहीं आता तो आत्मा सिंह के बंदे तैयार हैं वोट करने को, so that one can prove that a voting took place. कौन-कौन वोट करेगा? देखिए, सब भूखे शेर की तरह वोट दे देंगे वो। जब आत्मा सिंह को पुलिस ऑफिसर के थ्रू कहा जाता है कि वो लोगों को इकट्ठा करने जाएं, for the media of course, तो देखा जाता है कि उन बेचारों को धमकाकर वोटिंग के लिए लेकर जाया जाता है। हालांकि उन लोगों का हक है वोट करने का या ना करने का। This compulsion violates the basic ideals of democracy. किसी इंसान को धमकी से मजबूर करना वोट करने के लिए is as anti-democratic as preventing them from voting. In fact, a democratic government has a moral responsibility to be accountable to those who disagree. मीडिया को सिर्फ दिखाना चाहते थे कि देखो इधर भी वोटिंग होती है, मगर मीडिया को शायद ये नहीं पता कि इन बेचारों को धमका कर लाया गया है या इन लोगों के वोट तो चाहिए, but no politician was ready to send at least one person in this village to present the party program.
And we can even go much deeper into that matter about how the ideals of democracy are being violated. लेकिन इन एग्जाम्पल से जाहिर हो जाना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी का झंडा तो उठाते हैं, but in reality, on a daily basis, we don't behave democratically at all. जब भी हम एक नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर कामयाबी के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन जब ये कामयाबी जल्दी नहीं आती तो हम परेशान होते हैं, और ये तब भी जबकि हमें पूरा काम समझ भी ना आया हो। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हमें तब भी आती हैं जब हम न्यूटन को उसके नए जॉब एज एन इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को करते हुए देखते हैं। इलेक्शन के दौरान दिखाया जाता है कि न्यूटन सबकी मदद करना चाहता है, मगर एक ऐसी जगह पे जहां नक्सलियों का राज चल रहा है, और उसके जज्बात और जोश के बावजूद हमें जल्दी पता चल जाता है कि न्यूटन को इस जगह की बहुत सी लोकल चैलेंजेस का अंदाजा ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर अराउंड हिम और हाउ द लिविंग सिचुएशन एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द विलेजेस आर until Malko explained it to him. हमारे तो अपने कानून है, कई हजारों साल पुराने। But still, despite the lack of knowledge, वो अपने काम सही तरीके से और जल्दी खत्म करने में रहता है, और इनको फुलफिल करने में आर्ग्यू करने से भी पीछे नहीं हटता। आप ये वर्दी के दम पे जैसे चाय दमका रहे हैं। हालांकि उसको तकरीबन मूवी के आखिर में उस सुपीरियर ऑफिसर के जरिए अंदाजा हो जाता है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत देर से चल रही हैं और पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है। Of course, one can credit him with the courage and the democratic mindset that he agreed to help with the elections in a terrorized place. लेकिन ये हैरत की बात है कि पढ़ने लिखने से भी बहुत से लोगों में उनकी सब्र की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, जैसे कि हम न्यूटन के जरिए देख सकते हैं। वो काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी एक ही दिन के कुछ घंटों में उन गांव वालों के लिए कुछ बदलाव लाना चाहता है, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कोई बदलाव ना देखा हो। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हर नए काम को हमें पहले सब्र के साथ पूरा समझकर बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। वक्त लगता है, लेकिन बदलाव आता है, और कभी कभी इसके आने में ज्यादा वक्त लग जाता है जब कुछ सालों से गलत चल रहा हो और लोगों को ना उम्मीद छोड़ गया हो। मूवी में हमें यही बदलाव की सब्र मलकों के जरिए दिखाई जाती है, जो ऐसी ही प्लेसेस में इस ना इंसाफी के साथ पली बड़ी है, लेकिन फिर भी अपना काम करते हुए ये उम्मीद ले बैठी है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं जंगल बनने में। शुरू से हमारे पेरेंट्स इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ईमानदारी के रास्ते पर चलें और ऐसे ही एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। कुछ बच्चे बड़े होने के बाद इस कोशिश से हट जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि न्यूटन इस ईमानदारी के रास्ते पे चल निकलते हैं। जब हम न्यूटन को देखते हैं तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है, जो एक अंडर एज मैरिज के खिलाफ था, जो एज अ वॉलंटरी छोटे गांव में इलेक्शंस के दौरान मदद करता है और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के हर कोशिश के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है। एंड येट डिस्पाइट ऑल दीज गुड क्वालिटीज हिज कैरेक्टर सीम्स एरोगेंट। और ये शायद इसलिए लगता है क्योंकि वो सेवरल सीन्स में अपसेट या अपनी एनवायरनमेंट और दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हुए नजर आता है, जैसे कि जब वो आत्मा सिंह को वार्निंग्स देता है अबाउट फाइलिंग एंड कंप्लेन अगेंस्ट हिम इफ ही शुड नॉट कोऑपरेट। इसका मतलब ये है कि वो बस खुद नहीं ईमानदार होना चाहता, बल्कि दूसरों से भी डिमांड करता है, जिसकी वजह से दूसरों के लिए, जिनमें ना सिर्फ वो सोल्जर्स शामिल हैं बल्कि उसके अपने हेल्पर्स भी, उसके साथ काम करना मुश्किल रहता है। एंड ऑल्दो हिज सीनियर टेल्स हिम एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म कि उसका प्रॉब्लम उसकी ईमानदारी नहीं है, बल्कि उसकी ईमानदारी का घमंड, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि मार खाने के बावजूद वो मूवी के आखिर में अपना ऑफिस में टाइम पे आने का अवार्ड वही घमंड के साथ मलकों को दिखाता है, जैसे कि अपनी ईमानदार होने की वजह। And of course, we can't say with absolute certainty whether Newton follows the advice of his senior and drops some degree of his pride, because the film tells us too little about his character for that. लेकिन उस एडवाइस के जरिए हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदार होने से हम समाज पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारी ड्यूटी है जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। यानी इसका मतलब ये भी है कि हम कोई ईमानदारी का घमंड नहीं अपने पास रखें, बल्कि शिकायत के बगैर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से आगे करते जाएं, तो ही समाज साथ साथ ही तरक्की करेगी। फिल्म के मुताबिक हमें दिखाया जाता है कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। मूवी को देखने से हम सबको लगता है कि न्यूटन इस मूवी का हीरो है, क्योंकि वो सब कुछ करने को तैयार है ताकि इलेक्शंस फेयर रहे, और आत्मा सिंह इज द विलन। बट इज ही रियली द बैड गाय, और इज नोबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव? न्यूटन को लगता है जो वो कर रहा है सही है, मगर जो बात उसे समझ नहीं आ रही is that Atma Singh is just doing his duty. He probably wouldn't have any problem with fair elections if he had better equipment. क्या करता?
2 साल से मांग रहे हैं नाइट विजन गॉगल्स। फालतू में बहादुर बच्चे मर रहे हैं। चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर लोगों की सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट। न्यूटन जिस बात को नजरअंदाज कर रहा है वो ये है कि आखिरी नक्सली हमला कुछ अरसा पहले ही हुआ था। He only wants to hold the elections but doesn't want to understand आत्मा सिंह's perspective। यही बात आत्मा सिंह पर भी लागू होती है, who doesn't want to put himself in Newton's position। वो सिर्फ जल्द से जल्द इलाके से बाहर निकलना चाहता है और इस वजह से चुनाव में हेरा फेरी या लोगों को मजबूर करके वोट देने के लिए तैयार है। So he doesn't understand that Newton is doing his job as well, but he doesn't seem to care। And this kind of ignorance between people is often seen in the film। लेकिन दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझना इतना मुश्किल क्यों है और इसे कैसे बदल सकते हैं? It is important to realize कि हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है और हर कोई एक तरह नहीं सोचता। न्यूटन या आत्मा सिंह को इस बात की समझ नहीं थी, and that is why hostilities between people and misunderstandings arise। To resolve conflicts, each other's perspective should be understood। This gives a clear understanding of all sides of the problem and the ability to think creatively to find potential solutions। अगर वो एक दूसरे के साथ साफ साफ बात करते कि प्रॉब्लम क्या है और एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम समझाते तो शायद प्रॉब्लम का हल भी मिल जाता। But all this requires seeing the problem from both your own and others' perspectives and looking at both perspectives at the same time as a solution is sought। Dear viewers, we have reached the end of the video। जैसा कि आप सबने देखा, Newton is a very important movie which contains a lot of learnings। Do not forget the learnings। Let us repeat what we have learned from Newton। Number 1, knowledge of how to cast a vote and whom to vote is decisive। Number 2, the gap between the ideals of democracy and the way it is practiced is huge and we are all aware of it। Number 3, things need time to change, so be patient। Number 4, being honest is our duty to the society and shouldn't be shown with pride। And number 5, to resolve conflicts, each other's perspective should be understood। And with this in mind, we end this episode in the hope that you enjoyed it। We hope you liked our video। Please like and subscribe to our channel and share it with your friends and family। Feel free to comment। See you next time।